السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم يوم الجمعہ 17 ربیع الاول 1444 ہجری۔ آج جمعہ کا دن ہے، اکتوبر کی 14 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ ہود آیت نمبر 48 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قیل یا نوح کہا گیا اے نوح اتر جاؤ، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیکا اور برکتیں تم پر، وعلی ممن معک اور ان امتوں پر، ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہے، وامم اور کچھ امتیں، کچھ گروہ، سنمتعہم ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح اتر جاؤ تم سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں تمہارے اوپر اور ان امتوں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر جو تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کچھ اور امتیں، کچھ اور قومیں ہوں گی جنہیں ہماری طرف سے دنیا کا کچھ فائدہ تو ملے گا، پھر اس کے بعد انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کا واقعہ، کہ جب ان کی کشتی جو سو پہاڑ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے لگی، اس کے بعد جو سو اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین پانی کو نگل جا، آسمان کو کہا کہ تھم جا، اس کے بعد پانی کو سکھا دیا گیا، اور اس کے بعد جو سو نوح علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا کہ اتر جاؤ، یعنی اس کشتی میں سے اتر جاؤ یا اس پہاڑی میں سے اتر جاؤ، اور ہماری سلامتی کے ساتھ، یعنی ہمارے طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر، اور اس کے بعد ہم آنے والی قوموں میں سے کچھ لوگوں کو تو ہم کچھ فائدہ دیں گے، دنیا کا فائدہ تو دیں گے، اس کے بعد ان کے اوپر ہمارے طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام آپ کے ساتھ، اب دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ بچ گئے تھے وہی بچ گئے، اس کے بعد جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے تمام کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو 70-80 لوگ جو تھے ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کے ساتھ اب ایک نئی طریقے سے ایک نسل کو شروع کیا جا رہا ہے، نسل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے اور تم پر جو ہماری طرف سے رحمتیں ہیں اور ہمارے طرف سے برکتیں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب ان کی قوم کے اندر جب ان کی اولاد بڑھے گی، ان کی نسلیں پھیلے گی، تو ہوگا یہ کہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ نافرمان بھی نکلیں گے، ان میں سے کچھ لوگ کفر کرنے والے بھی نکلیں گے، کچھ لوگ شرک کرنے والے بھی نکلیں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قومیں، ان کو ہم دنیا کا فائدہ تو دیں گے لیکن ان کو بعد میں جو سو دردناک عذاب کی طرف پہنچایا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے قوم، ان کے لوگوں میں سے پھر وہ جب آگے ان کی نسل بڑھی تو ان کے اندر بھی دوبارہ شرک آ سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اور کفر کریں گے تو ان کو دنیا میں تو ہم فائدہ دے دیں گے لیکن اس کے بعد انہیں عذاب پہنچے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا کا فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ عام طور پہ تو اللہ کے نافرمان اور کفر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دنیا میں زیادہ فائدہ دیتا ہے، تاکہ کل قیامت میں ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور ان کے اس پر ایمان لانے والے ان کو بھی اگر دنیا میں دے تو بہتر ہے، نہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے یقیناً بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت توجہ کی حامل ہے، ذرا غور سے سنیے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا، ہم اسے وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سو غیب کی خبریں ہیں ان کو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ ما کنتا تعلموہا، نہیں تھا آپ اس کو جانتے، انتا ولا قومکا، نہ ہی آپ نہ ہی آپ کی قوم والے، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ، یقیناً انجام کار، آخری انجام کار، للمتقین، متقیوں کے لیے ہی ہے۔
देखें क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, इससे पहले जो नूह अलैहिस्सलाम का जो वाकया जिक्र किया गया है कदर तफसील के साथ, यानी उनके कौम के साथ क्या कुछ मामला हुआ, उनके ऊपर कैसे उनको जो सादात में डुबो दिया गया, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो कि कुफ्र पे था, नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे अल्लाह से उनके बारे में सवाल कर लिया तो अल्लाह ताला नाराजगी का इजहार किया। तो ये सारी की सारी खबरें गैब की खबरें हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तिलका मिन अंबाइल गैबी, ये तमाम की तमाम गैब की खबरें हैं, गैब की जो सब वाक़यात हैं, नूहीहा इलैका, हम इसे वही करते हैं आपके तरफ। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले की आयतों में जो हमने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको जिक्र किया है, ये तमाम गैब की खबरें हैं जिसको हम आपकी तरफ वही करते हैं। ना ही आप ना ही आपके कौम के लोग इसको जानते थे इससे पहले। मतलब क्या है कि ये खबरें वही के जरिए से आपको बताने से पहले ना ही आपको इसका इल्म था, ना ही आपकी कौम को इसका इल्म था। अब उसके बाद अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत कर रहे हैं कि आप सब्र कीजिए, बेशक आखिरी अंजाम कार मुत्तकियों के लिए ही है। यानी आपके ऊपर जो ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो तंज करते हैं, ईजा पहुंचाते हैं आपको, आप पर ईमान नहीं लाते हैं, आपको जो सो तकलीफें देते हैं, तो उन लोगों के जितने भी तकलीफें हैं, जो कुछ मुसीबतें आपको इस रास्ते में आ रही है, इसके ऊपर आप सब्र कीजिए, आखिरी अंजाम कार मुत्तकियों के लिए ही होगा। यानी आखिरकार आप और ईमान वाले ही कामयाब होंगे दुनिया में भी, और अगर दुनिया में बिलफर्ज कामयाबी ना भी मिली तो यकीनन आखिरत में तो मुसलमान और ईमान वालों के लिए कामयाबी गारंटीड है। अब इस आयत के अंदर जो कहा जा रहा है इसमें जरा गौर कीजिए। यानी जब नूह अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करवा दिया, वही के जरिए से आपको बयान किया, उसके बाद अल्लाह ताला दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं ये तो गैब की खबरें हैं जो हम वही करते हैं आपकी तरफ, इससे पहले ना ही आप ना ही आपके कौम के लोग इसको जानते थे। अब इतना वाज़े आयत के बाद कोई शक व शुबा रह जाता है, यानी कोई ये रॉकेट साइंस तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, उसके बाद जो अल्लाह ताला ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ही आप ना ही आपके कौम के लोग इस नूह अलैहिस्सलाम के वाकये को जानते थे इससे पहले, जब से कि हमने आपके तरफ वही किया। अब ये किसको कहा जा सकता है, बल्कि खुद अल्लाह ताला अल्फाज से खुद कह रहे हैं कि आप इसको नहीं जानते थे, ना ही आप ना ही आपके कौम इससे पहले। मतलब क्या है कि हमारी वही करने से पहले इसके बारे में ना आपको इल्म था ना आपके कौम को इल्म था। तो इससे क्या साबित हो गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब होना साबित होता है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वो गैब की खबरें थी जो हो चुका था, जो होने वाला है, ये इसकी खबर ये साबित होता है या इसके खिलाफ साबित होता है? सिंपल है, बहुत ही आसान है समझने वालों के लिए। और जो नहीं समझते हैं, जिनके अक्लों पर पत्थरे पड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं, अरे नबी के बारे में ये गुस्ताख है, बोले इनको नबी को वही के नबी के गैब के इल्म के बारे में इनकार करते हैं, बोले ये गुस्ताख रसूल है। बोले हमारा तो ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर गैब का इल्म था, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सबका इल्म था। और बल्कि मैंने जो बीच में जो कहा था ना, बार बार वो कहता हूँ, एक मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि दुनिया में तो दूर की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से वफात पा जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, आज भी अपने खबर में वो इसी तरीके से सारे अहवाल को देखते हैं जैसे कि कोई इंसान अपने हाथ में हथेली में कोई चीज हो। जैसे कि आजकल हमारे पास जो सो मोबाइल फोन वगैरह स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, तो जिसके अंदर हम सारी खबरें और दूर दूर के जो सो दूसरे मुल्कों के खबरें और सारे वाकयात को देख सकते हैं। मैं अपने जबान से कह रहा हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहरहाल वो बता रहे हैं कि जैसे कि कोई हथेली में कोई चीज को अपने आंखों के सामने देख सकता है, हमारा तो ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दुनिया से जाने के बाद भी अपनी खबर में जो सो सारे के सारे अहवाल को, सारे के सारे हालत को इसी तरीके से देख रहे हैं। ये हमारे भाइयों का, हमारे जो अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं, जो अपने आप को जो सो आशिक रसूल कहते हैं, उनका अकीदा है। और इसके ऊपर दलील कोई नहीं है, लेकिन बात ऐसे करेंगे जैसे कि कुरान और हदीस की ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक है, बल्कि इस तरीके से अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं जैसा कि ये कुरान और हदीस की निचोड़ है और कुरान और हदीस के मुताबिक इनका अकीदा है। अगर वो अकीदा सही है तो फिर ये कुरान की ये आयत क्या कह रही है हमको? या जरा अपने अपने ये क्लास के बाद जो सो आप लोग अपने अपने घरों के अंदर जो तर्जुमे रखे हुए हैं उसको निकालिए। सूरह हूद आयत नंबर जो सो
49 यानी 49 सूरह आयत नंबर 59 को निकाल के देखें, हमारे मौलवियों ने भी, जिसको हम मानते हैं, उन्होंने भी इस आयत का क्या तर्जुमा किया है। क्या मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत अपनी बात अपने तरफ से बात कर रहा हूँ? नहीं, वही कर रहा हूँ जो कि आयत का तर्जुमा और मफहूम है। यानी अल्लाह ताला वाज़े अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि ये तो गैब की खबरें हैं जो आप और आपकी कौम नहीं जानती थी इससे पहले, जब तक कि हमने इसको वही नहीं किया। मतलब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, आप जिंदा है, और उसके बावजूद भी आपको इस गैब का खबर का इल्म नहीं था उस वक्त तक, जब तक कि आपको वही किया गया। और अल्लाह से बढ़ के सच्चा कौन हो सकता है, और कुरान से बढ़ के सच्चाई की बात किसकी हो सकती है। लेकिन इसके बरखिलाफ क्यों कि हमारे जाहिल मुसलमान कुरान पढ़ते नहीं, समझते नहीं, और उनको जो चाहे दीन के नाम पे कह दो, वो सर झुका लेकर हाँ हाँ करेंगे, माशाल्लाह कहेंगे, नारे तकबीर नारे रिसालत कहेंगे। इस वजह से फिर बुरे मौलवी लोग इसीलिए उनको रोकते हैं कि कुरान तुम नहीं समझ सकते, कुरान तुम नहीं जान सकते, हम जो कहते हैं कह दो, मान लो। तो हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि नबी तो जिंदगी में थे, ये कुरान उनको नहीं पता है। वो क्या उनको नहीं पता है कि कुरान की आयतें, क्या वो कुरान नहीं पढ़े हैं? सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन अपने बुरे अकीदे को साबित करने के लिए, अपने गलत अकीदों को साबित करने के लिए जो चाहे दिल में आए कह दें। और दर हकीकत में उनको नबी से कोई वाकई हकीकत में मोहब्बत नहीं है कि नबी के बारे में इस तरीके का अकीदा रख के नबी को बहुत ऊंचा करना चाहते हैं। दर हकीकत में उसमें अपनी खुदगर्जी होती है। अपने नबी के लिए गैब का इल्म साबित करना इसलिए भी जरूरी है उनके लिए, ताकि फिर उसके बाद जो बुजुर्गान दीन है, औलिया अल्लाह है, उनके लिए भी हम साबित कर सकें। अगर नबी के लिए साबित नहीं करे और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के लिए हम साबित कर दें, तो वो लोग कोई पूछ सकता है कि भाई नबी के लिए तो ऐसा कोई चीज नहीं है, फिर आप अपने बुजुर्गों के लिए कैसा करते हैं? तो इसके लिए क्या है, पानी आने से पहले ही बांध दो। तो नबी के बारे में ऐसा अकीदा कर दो कि नबी को तो सब कुछ पता था, जो हो चुका है, जो होने वाला है, और इस तरीके से कहकर फिर उसके बाद बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे वाकयात और ऐसे ऐसे झूठ खड़ देते हैं कि फला बुजुर्ग थे वो जो ऐसा करते थे, फला बुजुर्ग थे उनको सब कुछ पता चल जाता था, फला बुजुर्ग थे वो मुस्तकबिल के बारे में ये खबरें दे देते थे, फला बुजुर्ग थे, बल्कि थे दुनिया में थे की बात तो खत्म, वो दुनिया से जाने के बाद, अपनी खबरों में मदफून होने के बाद, 100 साल गुजर चुके हैं उनके वफात के बाद, आज भी उनके बारे में क्या अकीदा रखा जाता कि वो अपनी खबर के अंदर बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल बाहयात है। बल्कि जालिमों ने यहाँ तक तो कह दिया कि किसी बुजुर्ग और किसी वली के खबर के करीब, यानी अब नाम नहीं लेता, वो इतने बड़े आलिम साहब है उनके गिरोह के, जिनके बारे में ये लोग जो सो बिना वजू के शायद उनका नाम भी ना ले, तो इतने बड़े वो बुजुर्ग है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है किसी बुजुर्ग किसी वली के खबर के पास तुम जब सलाम करने जाओ तो उनके सरानी से मत जाओ, बल्कि पेशा यानी पैंती के तरफ से जाओ, यानी उनके जो पैर है, जो खबर में, जिस खबर में वो है, उनके पैरों के पास से जाओ, सर के तरफ से मत जाओ। क्यों कि जब तुम सर के तरफ से पीछे से आओगे और उनके खबर के पास खड़े होकर सलाम करोगे, तो बुजुर्ग को तकलीफ होगी पलट के देखने के लिए कि कौन आ रहा है मेरे खबर के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अंदाजा करें कि दुनिया में जब वो थे होंगे तो अपनी घर के अंदर दीवार के पीछे क्या है उनका, उसका इल्म नहीं होता था होगा। 10-15 मीटर के दूरी पे अगर कोई बात कर रहा होगा तो उनको सुनाई नहीं देता था। लेकिन आज मरने के बाद बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में क्या अकीदा समझाया जा रहा कि वो खबर के अंदर ना सिर्फ ये कि जिंदा है, मौजूद है, बल्कि वो खबर के अंदर उनको, अगर तुम सर के तरफ से आओगे तो उनको तकलीफ होगी देखने के लिए कि कौन मेरे खबर पर आ रहा है, तो लिहाजा तुम पैर पैंती के तरफ से आओ, पैर के तरफ से आओ, ताकि वो लेटे लेटे तुमको देख ले सके। मतलब क्या है कि वो खबर के अंदर उतनी सारी मिट्टी, जब मिट्टी ऊपर से दली भी है, उसके बावजूद भी ये मिट्टी जो सो उनके लिए कोई आर्ट नहीं है। जैसे कि एक्सरे लगा हुआ है या कोई सीसीटीवी लगा हुआ है, वो अंदर से बैठकर आराम से देख सकते हैं कि कौन आ रहा है। बल्कि इसके आगे हटकर क्या कहा, अरे भाई तुम कहते हो कि खबर वाले कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं सुनते, हमारा तो अकीदा है कि कोई बुजुर्ग के खबर के ऊपर कौन सलाम करने आ रहा है वो भी जानते हैं, वो जो सलाम करता है उसके सलाम को जवाब भी देते हैं। बल्कि किसी बुजुर्ग के खबर के ऊपर कोई चिड़िया बैठती है तो वो चिड़िया नर है कि मादा है, इसका भी उनको इल्म हो जाता है। हमारा तो ये अकीदा है। ये हमारे मुसलमान भाई वो जो अपने आप को औलिया अल्लाह के दोस्त और जो आशिकान रसूल और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो अकीदा रखते हैं। जबकि कुरान का अकीदा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है। आपको अल्लाह ताला गैब पहले पिछली कौमों के वाक़यात बयान करके कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर आपके
जिंदगी में आपके अंदर आपके जिंदगी में कितने ही ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे साबित होता है कि आपको गैब का खबर नहीं थी, बल्कि दिलों के हालों को जानने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। आज हमारे मुल्कों में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में क्या कहा जाता, फलां बुजुर्ग थे, और बल्कि राबिया बसरी के बारे में कहते हैं कि वो एक मरतबा तवाफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए गई, तो उनके पीछे जो सो कोई और तवाफ कर रहा था, उसने अपने नजर अपने दिल में जो सो कुछ शक और शुबा किया राबिया बसरी के बारे में, तो पलट के उसको जो सो जवाब दे रही है और कह रही है कि तुम मेरे बारे में ऐसा अकीदा रखते हो, ऐसा सोचते हो। उसने वो हैरान हो गया कि इनको कैसे पता चला। देखें क्या हाल है, क्या ये है कि मतलब क्या है कि ना सिर्फ ये कि मरने के बाद या दूसरी गैब की खबरें हैं, बल्कि किसी के दिल में क्या वसवसा उठा है, ये भी हमारे बुजुर्गों को, औलिया अल्लाह को समझ में आ जाता, वो देख लेते हैं। ये हमारे किस्से कहानी है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहया थे, आप नबी है, रसूल है, दीन का काम कर रहे हैं, दीन का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग देहात से आए, गांव से कुछ लोग आए और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गांव में जो सो लोग ईमान लाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो ईमान ला चुके हैं, उनकी तालीम के लिए आप कुछ हुफ्फाज को जो हाफिज कुरान है उनको हमारे साथ भेजिए। अब वो सामने नबी के सामने खड़े हैं, नबी से मुतालिबा कर रहे हैं। नबी को तो उनके दिल के अंदर क्या इरादा है, उनके दिल में क्या शर है, नहीं पता चल रहा। उनकी जबान पर भरोसा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को, जो बड़े बड़े हुफ्फाज थे, बहुत दीन का इल्म जानते थे, उनको उनके हमरा भेज दिया और वो रास्ते में उनको ले जाकर, निहत्ते सहाबा को ले जाकर उनको कत्ल कर दिया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में इल्म हुआ, तो आपने जो सो 1 महीने तक तकरीबन उनके खिलाफ, उन देहातियों के खिलाफ बद्दुआ करते रहे, कुनूत नाजिला पढ़ते रहे। तो बताए, अंदाजा करें कि नबी के सामने शर पसंद लोग आकर दिल में कुछ रखे हैं, जबान से कुछ कह रहे हैं, नबी को उसका इल्म नहीं हो रहा है। आपको दावत देकर जो सो ये यहूदन जो सो जहर मिलाकर गोश्त में रख देती है सामने, 2 सहाबी जो सो लुकमा खाई लिए थे कि वहीं पर वो ढेर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुंह में लुकमा रखा ही था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि इसको आप फेंक दीजिए, इसमें तो जहर है। नबी को जो सो जहर दिया जा रहा है, आपको उसका गैब का इल्म नहीं हो रहा है। लेकिन आज बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नाम पर जो जिंदा है, उनके बारे में भी ऐसी ऐसी करामतें कर दी जाती, जो वफात पा चुके हैं उनके बारे में भी अकीदा रखा जाता कि उनकी खबर के ऊपर जाओ तो वो सुनते भी हैं, हमारी दुआओं को कबूल भी करते हैं, हमारी मन्नतों को पूरी भी करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। जबकि नबी के बारे में, नबी की जिंदगी में, उनके सामने जो खड़ा हुआ है उसके दिल में शर है कि खैर आपको पता नहीं चल रहा, आपको गोश्त में जहर रख के दिया जा रहा है, आपको उसका इल्म नहीं है। जो इल्म, जो गैब की खबरें बता दी गई, उतना तो आपको इल्म है, उसके अलावा नहीं है। और इस आयत में तो अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया। और उसी तरीके से हजरत मरियम का जो वाकया है, जो उनका जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हजरत मरियम का जो वाकया, पूरा का पूरा वाकया है, उसके जिक्र के बाद भी अल्लाह ताला ने यही इसी तरीके की आयत को भेजा। और आपने कहा कि ये भी गैब की खबरें हैं जो ना ही आप और आपकी कौम जानती थी इससे पहले कि हमने आपको वही किया। तो जब कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि गैब की खबरें जब अल्लाह ताला वही के जरिए से आपको बताता है, तभी नबी को पता चलता है। उससे पहले, उसके बाद कुछ और खबरों का आपको इल्म नहीं होता। और आपकी जिंदगी के अंदर कितने ही ऐसे वाकयात आए हैं जिससे साबित होता है कि आपको गैब का खबर नहीं होती थी। आप लोगों जब जबान से कुछ कहते तो जबान से जो कहते उस पर भरोसा कर लेते, आपको नहीं पता होता कि उनके दिलों के अंदर क्या इरादे हैं, क्या शर है। तो बहरहाल ये तो नबी का मामला है। और इसके बरक्स में जो आज हमारे मुल्कों के अंदर हमारे जो अकीदे बने हुए, दोनों को कंपेयर करें और खुद अपना मुहासबा खुद करें। अब इस आयत को आपने सुन लिया, इसके बारे में तफसील सुन लिया, और अगर कोई शक व शुबा है तो फिर अपने अपने घरों के अंदर जो कुरान रखी हुई है, अगर कोई तर्जुमे की कुरान रखी हुई है तो उसको उठाइए, सूरे हूद आयत नंबर 49 को उठाइए, उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसके अंदर क्या तर्जुमा लिखा है, और इस कुरान के इस आयत के मफहूम और माने को अपने जहन में बिठाइए। फिर उसके बाद हमारे जो अकीदे हैं, हमारी जो सोचें हैं, उनको ले आइए, उसको रिपीट कीजिए, उसको याद कीजिए, और उसको इस आयत के ऊपर परखिए कि क्या हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में हमारे ये अकीदे नहीं हैं कि दुनिया में भी उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती है।
وہ خاص طور پہ جو غوث اعظم کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی، زمانہ گزر گیا، ان کے پاس ان کا ایک مرید اور ان کا جو سب چاہنے والا ہر سال نظر نیاز کرتا ہے، اور ایک سال جب اس نے نیاز کیا تو اسی دن اس کی انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے وقت میں اس نے وصیت کیا اپنی بیوی کو کہ میرے انتقال ہونے کی خبر کسی کو نہیں دینا، سب کو جو سو دعوت کا کھانا کھلاتے رہنا۔ تو وہاں پر دیکھیں اب کیا کہا جا رہا کہ غوث اعظم نے جو سو اپنے خبر سے نکلے، ایک بزرگ اور فقیر کے بھیس میں آئے اور آ کے اس کے خبر کے گھر کے پاس آئے اور آ رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، کئیوں سال ہو گئے، اور ان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خبر میں پتہ چل رہا ہے کہ فلاں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کہیں پر جو سو کسی میرا ایک مرید ہے، اس نے جو سو وہ نیاز کیا ہے اور وہاں پر اس کی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنی خبر سے نکل رہے ہیں، انسانی شکل میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں، اور اس کی جب لاش کو سامنے لایا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے، تو وہ لاش جو اٹھ کے بھی بیٹھ جا رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے سامنے اس طریقے کے قوالیاں، اس طریقے کے جو قصے اور اس طریقے سے کتابوں میں لکھی ہوئی واقعات ہیں، تو کیا ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر لوگ اگر اس کو منع کریں گے تو کہیں گے بھئی یہ بزرگان دین ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو دے رکھا ہو سکتا ہے یہ ان کے اللہ نے اختیارات دے رکھا ہو، آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ تو گستاخی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اگر ان کے بارے میں اگر ان کو انکار کرنا گستاخی ہے، تو پھر قرآن میں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ ہی آپ نہ ہی آپ کے قوم اس کو جانتی تھی۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اور نبی کو بتا رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبی کی گستاخی کر رہا ہے اور نبی کو انکار کر رہا ہے؟ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن چاہے جو کہتا ہے کہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ مرنے کے بعد بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو نبی اپنی زندگی میں نہیں کر سکے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہی تو ہے شرک۔ یعنی نبی کے بارے میں بھی ہم جب ہمارا عقیدہ اور قرآن کا عقیدہ کیا ہے، جب آپ دنیا سے جا چکے، آپ اپنی خبر کے اندر جو سو کیا کہتے ہیں کہ وہ برزخی زندگی میں ہے، جو جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کیفیت کیسے ہے، اور بہرحال آپ کو اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ برزخ کہتے ہی پردے کے بارے میں ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو لوگ جو برزخ میں جا چکے ہیں، ان لوگوں کو اس دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو برزخ میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ہے جو کہ حائل ہے۔ تو جب یہ پردہ ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، تو نبی کو جب کچھ پتہ نہیں ہے، تو آج بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو سب کچھ پتہ چلتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں ہمارے باتوں کو، ہماری جواب بھی دیتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی ہم نظر نیازیں کریں۔ یہ سارے شرکیہ کام ہے جو کہ ہم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے، میری بات پر توجہ دیجئے گا، اور اپنے عقل کو جو سو اس پر استعمال کیجئے، اللہ کو گواہ رکھ کر، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اگر ہمارے اندر غلط عقیدے ہیں تو آج ہمارے لیے موقع ہے، آج ہماری زندگی ابھی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن موت کا وقت جب سامنے آ جائے گا، یا جو سو قیامت کی کوئی بڑی نشانی سامنے آ جائے گی، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اگر اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے تو جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا۔ اور اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، لوگوں کو بولتے تھے کہ خبردار شرک سے بچے رہنا، خبردار شرک سے بچے رہنا۔ اور آج امت کا حال کیا ہے؟ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کو ڈرایا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے ان کے امت کے بارے میں، آج امت کی اکثریت اسی شرک میں مبتلا ہے، اسی غلو میں مبتلا ہے۔ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں جو سو لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں خبردار میرے بارے میں ایسا غلو مت کرنا، جیسے کہ نصارہ نے جو سو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کو اللہ کی درجے دے دیا، یقیناً وہ انہوں نے بہت بڑا شرک کیا۔ خبردار میرے بارے میں ایسا کام نہیں کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جاننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم کو اور اپنی امت کو جو سو آخری وصیت یہ کر رہے ہیں، لیکن آج نبی کی قوم کیا کر رہی ہے؟ محبت کے نام پر غلو کرتے ہوئے جو سو، نبی تو نبی ہے، نبی کے بعد جن کو آج
100 साल के बाद नबी की जिंदगी के बाद जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में ये अकीदा घड़ लिया गया कि वो सब कुछ दुनिया में भी जो चाहे करते थे, दुनिया में जो कुछ करना था कर रहे, उसके बाद उनकी वफात के बाद भी वो सब कुछ कर सकते हैं, जो नबी के बारे में भी साबित नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह हम तमाम को हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। व इला आदिन अखाहुम हूदन, और आद की तरफ उनके भाई हूद को, खाला उसने कहा, या कौम इबुदुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों तुम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और इलाह, इन अंतुम नहीं हो तुम, इल्ला मुफ्तरून, मगर ये कि तुम इफ्तिराह बांधते हो, झूठ बांधते हो। अब यहाँ पर जो सो कौम आद का जिक्र किया जा रहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को हमने भेजा। मतलब क्या है, यहाँ पर देखें नबी और रसूल को जो सो उनका भाई, कौम का भाई कहा जा रहा, क्यों? मतलब क्या है कि वो भी एक इंसान होता है, वो भी एक उन्हीं के कौम में से होता है, तो लिहाजा आद जो है उनके कौम के अंदर हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कि दर हकीकत उन्हीं में से थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने कौम आद के तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो उन्होंने जब सबसे पहला मिशन क्या था, उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई और माबूद और कोई और हाजत रवा नहीं है, और मगर ये कि तुम जो सो उसके ऊपर झूठ बांधते हो और बहतान बांधते हो। मतलब क्या है, हर कौम ने, हर रसूल ने अपनी कौम में जब आए तो सबसे पहले दावत यही की दी कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। तो यही सबसे पहली बुनियाद है। आज मुसलमानों का हाल क्या है, इस दावत को तो भूले हुए हैं, इस अकीदे को तो छोड़े हुए हैं, और हमारी जो सो बहस और मुबाहिसा क्या होता है कि सीने के ऊपर हाथ बांधना है कि नाक के ऊपर हाथ बांधना है, आमीन जोर से कहना है कि आहिस्ता कहना है, सर के ऊपर हाथ रखना है या सीने के ऊपर रखना है, इस तरीके के छोटे छोटे मसलों पर हमको उलझा के रख दिया गया, और कहते हैं कि मियाँ यही इख्तिलाफ है, इसके सिवा कोई इख्तिलाफ नहीं है। जबकि जो बुनियादी इख्तिलाफ है उसके ऊपर जिक्र नहीं करते, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, और अपनी कौम को कहते हैं कि ये तो फलां है, ये तो फलां है, इनकी बात मत सुनो, इनकी दावतें में मत जाओ, इनके मौलवियों की बात मत सुनो, कुरान तुम नहीं समझ सकते। फिर करना क्या है, हम जैसे तुमको कहते हैं हमारी बात सुनो, हमारे पीछे पीछे चलो, जो हम कहते हैं उसको मान लो, और जो सो हम जिस दिन के बारे में नजर नियाज के बारे में कहते हैं वो करते जाओ, हम तुमको जन्नत में लेके जाएंगे। अगर जन्नत में ले जाना इतना आसान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को ये नहीं कहते, ए मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो मुझसे लेना है तू ले ले, कल क़यामत में मैं तेरे लिए कोई काम नहीं आ सकता। तो मतलब क्या है कि जैसे कि खुद नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हम कल परसों पढ़ चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम अपना बेटा जो कि कुफ्र में है, और जो सो कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे को कह रहे हैं, ए मेरे बेटे आज तू जो सो कश्ती में सवार हो जा। वो कहता कि मैं नहीं सवार होऊंगा, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझको आग पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हरगिज नहीं, आज कोई किसी को नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिसके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमत हो। और उसके बाद जब देखते ही देखते अपना बेटा जो सो पानी में डूब रहा है, गर्क हो रहा है, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको डांट दे रहा है, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे बारे में मुझसे सवाल मत करना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो पता क्या चला, एक नबी और रसूल भी जो सो अपने बेटे को जो कि कुफ्र में है उसको ईमान पर लाने से हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं कि दुनिया में मुझसे जो लेना है ले ले, कल क़यामत में मैं तेरा कोई काम नहीं आ सकता। हर इंसान को अपने अपने नामाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे मुल्कों में क्या है, हम जो चाहे शिर्क करें, जो चाहे कुफ्र करें, जो चाहे बिदात करें, लेकिन क्या है, मिलादुन नबी के नाम पर रक्स कर लें, नाच लें, कूद लें, डीजे लगा लें, हम बहुत बड़े आशिक है रसूल। हम जो सो कोई नजर नियाज कर लें, 11वीं कर लें, 12वीं कर लें, हम जो सो आशिक है रसूल, और हम जो सो सीधे जन्नत में जाने वाले। फिर लोग कहते हैं कि जो कुछ लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। तो इस तरीके का कुफ्र और शिर्क रखते हुए हम ये गुमान करें, हम ये सोचें कि हम तो जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह हम पर रहम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत को, अपनी सहाबा को बार बार डरा रहे हैं कि खबरदार शिर्क से बचना, खबरदार शिर्क से बचना। और सबसे बड़ा गुनाहों की जब जिक्र आता है तो सबसे पहले शिर्क का नाम लेते
हैं। और ये कौम और ये उम्मत आज जो सो शिर्क के अंदर पूरी की पूरी सर से लेकर पैर तक मुब्तला है। उसके बावजूद भी सितम ये है कि अपने आप को सच्चे और पक्के मुसलमान समझते हैं, अपने आप को जो सो आशिक रसूल का नाम देते हैं और ये गुमान करते हैं, ये भरम करते हैं कि हम फला फला का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। अगर इतना आसान होता तो फिर मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जिनके अकायद आज के मुसलमानों से कहीं ज्यादा बेहतर थे, वो तो हमसे पहले जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो जाएंगे। बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।